ससुर ने अपनी बहू से शादी करने की कोशिश की। बहू ने इनकार किया तो दादा अपने ही पोते को अगवा करके ले गया। 2 दिन पास रखने के बाद अपने बेटे को कॉल की कि अगर अपनी बीवी यानी मेरी बहू की मेरे साथ शादी ना करवाई तो तुम्हारे बेटे यानी अपने पोते की जान ले लूंगा। बेटे ने इनकार किया तो 6 साला पोते को गला दबाकर लाश पार्क में फेंक दी। बहुत अफसोस हो रहा। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਸ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। हकीकी वालिद ने मार के इधर जो गंदा नाला है उधर फेंका है। तो कॉलर की कॉल पे जो है हम उधर मौके पे पहुंचे तो वहाँ जो 6 साल का बच्चा है गुलाम मुस्तफ़ा जिसका नाम है उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मौजूद थी और उसके गले में सुर्ख रंग का एक रुमाल था जिससे उसको गला घोंट के मारा गया था। मकतूल है उसकी वालदा के साथ कोई ताल्लुकात कायम करना चाह रहा था और अपने बेटे पे और बहू पे मुसलसल वो उनको प्रेशराइज कर रहा था कि आप इसको तलाक दे दें। अपने बेटे को कह रहा था मैं इसके साथ शादी करना चाह रहा हूँ अपनी बहू के साथ और इसी गुस्से में वो फिर वो बच्चे को लेके गया। अच्छा जी 58 साल ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ 57 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਗਲਤ ਰਾਬਤੇ 'ਚ। ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਦੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਉਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਮਲਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੁ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਦੀ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲੈ ਜਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾ ਤੋ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਸ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਸੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲੇ ਨੂਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਦਰੀਓਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਪੁਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਖਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਭੋਗੀਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਨੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਦਰੀਓਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਸ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਦਾਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਪਾ ਦੀ ਕਸਮ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਬਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਐਵੇਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਵਸ ਸੀ ਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮ। ਬਹੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬਹੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਘਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਕਿਤੇ।
ने जान जून ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਫਿਰ ਪਾਂਡੀ ਪੁਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੰਡੀ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ 7 ਦਿਨ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ। ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुजरपुरा मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह 6 से 7 रोज के दौरान इस शातिर मुलजिम को उन्होंने पकड़ा अपनी सलाहियतों को सामने रखते हुए, और कहां से गिरफ्तार किया, ये सारा वकूआ हुआ किस तरह, कब इनको इत्तला मिली कि ये वाक़या पेश आ चुका है और कब FIR दर्ज हुई, सारे वाक़े की जो हकीकत है इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, FIR कब दर्ज होती है, कब पता चलता है कि आपके इस एरिए में ये वाक़या पेश आ चुका है? ये 22 मई को सुबह तकरीबन अर्ली मॉर्निंग हमें एक 1 की कॉल मौसूल हुई, जिसमें एक बंदे ने बताया कि मेरा जो बेटा है इसकी डेड बॉडी जो है उसको मेरे हकीकी वालिद ने मार के इधर जो गंदा नाला उधर फेंका है। तो कॉलर की कॉल पे जो है हम उधर मौके पे पहुंचे, तो वहाँ जो 6 साल का बच्चा है गुलाम मुस्तफ़ा जिसका नाम है, उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मौजूद थी और उसके गले में सुर्ख रंग का एक रुमाल था जिससे उसको गला घोंट के मारा गया था। तो मौके पे हमने पहुंच के फिर जो है वो उसको कॉर्डन ऑफ किया क्राइम सीन को, और PFSA की टीम को कॉल किया, वहाँ से जो एविडेंस कलेक्ट हो सकती थी वो की। तो उसके बाद फिर जो है वो FIR दर्ज हुई, पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, डेड बॉडी की वरसा के हवाले हमने, और इसमें उसने मुद्दई ने अपने वालिद को नामजद किया और उसने बताया कि मेरा हकीकी वालिद इसको कोई 3-4 दिन पहले ले गया था अगवा करके, और मुझे मुसलसल वो धमकियाँ देता रहा है कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा, और आज भी आखिर उसने इसको कत्ल करके जो है इसकी डेड बॉडी यहाँ पे फेंक दी। सर, धमकियाँ देने की वजह क्या थी? कोई घरेलू मसाइल थे, झगड़े थे, क्यों लेकर गया बच्चे को? जी असल में कुछ घरेलू मसाइल थे। जो कातल है, जो बच्चे का दादा है नसीर अहमद, वो जो मकतूल है उसकी वालदा के साथ कोई ताल्लुकात कायम करना चाह रहा था और अपने बेटे पे और बहू पे मुसलसल वो उनको प्रेशराइज कर रहा था कि आप इसको तलाक दे दें। अपने बेटे को कह रहा था मैं इसके साथ शादी करना चाह रहा हूँ अपनी बहू के साथ, और इसी गुस्से में वो फिर वो बच्चे को लेके गया और फिर तलाक ना देने की वजह से उसने फिर बच्चे को मर्डर किया। गिरफ्तार कहाँ से किया और 7-8 रोज़ कहाँ पर आप चेक करते रहे कि इस शख्स को कैसे पकड़ा जा सकता है, और किन किन जगहों में जाकर आपको शुबा था कि यहाँ पर ये गिरफ्तार हो सकता है यहाँ से? जी ये जब हमें FIR हुई है और वकूआ हुआ उसके फौरी बाद हमने इसकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन मुलज़िम बड़ा चालाक था, इसने अपने मोबाइल नंबर वगैरह बंद कर दिए, लिहाजा लोकेशन वगैरह से ये ट्रेस नहीं हो सका। और उसके बाद फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमारा अपना नेटवर्क है उसको मुतहरक किया। हमने अपने जवानों की भी सिविल्स में ड्यूटियाँ लगाई, और लाहौर में और लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पे भी हमने अपनी चेकिंग बढ़ा दी कि अगर ये लाहौर से बाहर मूव करता है तो हमें कुछ मालूमात मिल जाएं। तो जहाँ जहाँ पे ये मुमकिन तौर पे रात स्टे कर सकता था, क्योंकि अजीज़ों के पास जाने की सूरत में हमने इसके तमाम अजीज़ों कारब को गेंज किया हुआ था, वो हमें इतला मिलने की उम्मीद थी, तो लिहाजा इसके वो प्राइवेट दोस्त या लोग या जिनसे ये मिल सकता था वहाँ पे हमने रेड किए, वहाँ पे तलाश की। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पे भी हम इसको तलाश करते रहे, और बिलाखिर 29 तारीख को हमें सुबह फजर की नमाज के बाद एक इतला मिली कि ये फ़लाँ जगह पे देखा गया है। तो उसके फिर थोड़ी देर के बाद हमने वहाँ पे रेड किया, फिर इसको तलाश करते रहे।
और फिर चेज़ करने के बाद काफ़ी मुश्किल के बाद इसको हमने गिरफ़्तार किया। सर एसपी साहब के हमरा आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको बड़ी मैं समझता हूँ खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिस तरह आपने इस मुलजिम को पकड़ा है। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वजह शायद सोसाइटी को भी एक मैसेज देना था, और क्या पैगाम देना चाहेंगे ख़ास तौर पर? हो सकता है कि ऐसे वाक़यात हमारे इर्द गिर्द हमारे माशरे में सोसाइटी में हो रहे हों, इज़्ज़त की वजह से लोग ना बोलते हों। जी देखिए, हम सारे इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और मीडिया का काम जो है वो असल में मुआशरे में रूनुमा होने वाले जो चीज़ें हैं वो अवाम के सामने लेके आनी है। आपका भी बहुत बड़ा किरदार है इसमें, और यकीनी तौर पे हमारे मुआशरे में इस तरह के बहुत से काम ऐसे हो रहे होंगे अभी भी, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद या इस बंदे को सामने लेके आने का मकसद यही था कि अगर किसी भी सतह पे कोई ऐसा जुर्म करने का सोच रहा है तो उसके लिए भी इबरत का मुकाम हो, और अगर किसी जगह पे कोई शख्स किसी मजबूरी के तहत ब्लैकमेल हो रहा है तो वो भी इस चीज़ को देखते हुए समझ जाए कि अगर वो इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस नहीं करेगा तो फिर उसके साथ भी कल को ये हो सकता है, और ताकि मुआशरे में इस तरह के जो गंदे अनासर हैं वो थोड़े होंगे, बहुत थोड़े होंगे। इस तरह के मुकद्दस रिश्तों में जो इस तरह के काम करते हैं वो थोड़े लोग होंगे, लेकिन उनकी निशानदेही होनी बहुत ज़रूरी है। सर इस वाक़े को सुनने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी एक इंसानियत के तौर पे कि हम जिस मुकद्दस इस मुआशरे का हिस्सा हैं वहाँ पर ये वैसा वाक़या पेश आ जाना? जी बिल्कुल, जब हम क्राइम सीन पे पहुँचे तो बड़ा ही अफसोसनाक मंज़र था। एक 6 साला मासूम बच्चे की डेड बॉडी हमारे लिए भी बड़ा ही ये शॉकिंग चीज़ थी, और फिर जैसे जैसे इसके फैक्ट्स खुलते गए केस के, जिसमें ये पता चलना कि इसके हकीकी दादा ने इसको कत्ल किया है और ये अपने वालिद की वाहिद औलाद था, और फिर किस वजह से कत्ल किया, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यकीनी तौर पे अफसोस के काबिल हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। आपने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मुर्तज़ा साहब की ज़बानी इस वाक़े की सारी हकीकत जानी कि ये वाक़या पेश किस तरह आया और इस मुलजिम को किस तरह गिरफ़्तार किया, और बकौल इनके कि इस वाक़े को इतना मीडिया पर हाइप क्रिएट करने की वजह भी यही है कि हो सकता है कि हमारे सोसाइटी के इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हों, ख़वातीन ऐसे घरों में चंद लोग होंगी जो इस हैरेसमेंट का शिकार हो रही हों, तो इस वाक़े को इतना प्रमोट करने की वजह भी यही है कि वो लोग इबरत का निशान हासिल करें, देखें कि अगर ऐसा वाक़या पेश आता है, अगर हम ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं तो उसकी सज़ा यही है कि सलाखों के पीछे आपको बाकी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।